દર્શક મિત્રો, ગુજરાત વંદનમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે વાત કરીએ છીએ 5 રાજ્યોના ચૂંટણીના પરિણામોની, પરંતુ સૌથી વધુ જે ચર્ચામાં રહ્યું છે, સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળનો ગઢ જીતવા માટે જે એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે અને એમાં જે ઝાલમુરીએ તડકો માર્યો, આ ઝાલમુરીના તડકાએ એમ કહો કે મમતાના મોઢામાંથી સત્તાની જીત રૂપી લગભગ 100 થી 110 જેટલી બેઠકો આંચકી લીધી છે. આંકડો ભલે 5-7 નંબર ઓછા વધતા હોય, પરંતુ સ્પષ્ટ એ પ્રકરણ છે કે જ્યાં નરેન્દ્ર મોદીએ ઝાલમુરી ખાધી હતી એ વિસ્તારની તમામ બેઠકો પર ભાજપે ભગવો લહેરાવી દીધો છે. જોકે બોખલાયેલા મમતા બેનર્જીએ એવું કહ્યું છે કે છેલ્લે ઘડી સુધી એમને આશા છે અને એમને હારનું ઠીકરું સર ઉપર અને કેન્દ્રીય મોવડી મંડળ એટલે કેન્દ્રની ભાજપા સરકાર એનડીએ સરકારના જે સમીકરણો રચ્યા હતા, સરથી માંડીને બાંગ્લાદેશીઓ આ છે તે છે, ઘણા બધા કારણો આપ્યા, પરંતુ મમતાને હજી સુધી વિશ્વાસ છે કે પોતે જીતશે. પરંતુ સર્વત્ર દેશભરમાં એ સાબિત થઈ ગયું છે કે એનડીએ એટલે કે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળનો ગઢ સર કરી લીધો છે. આપણી સાથે વરિષ્ઠ પત્રકાર જગદીશ મહેતા જોડાયા છે. આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. જગદીશભાઈ, સ્વાગત છે. જી નમસ્કાર. દીદી ઓ દીદી, આ વખતે ન ચાલ્યું, પણ એક માત્ર ચાલી ઝાલમુરી. શું કહેશો શાહ અને મોદીની બંગાળ સર કરવાની કેન્દ્રમાં ત્રીજી ટર્મ હતી અને ત્રીજી વારમાં એમને ફતેહ કરી છે? મેહુલજી, ઝાલમુરી કે ગુજરાતી જોડી જે છે અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી વગેરેની ચાણક્ય નીતિ કે એ બધું તો અત્યારે એવું છે, જીતે તો કેપ્ટનને ટ્રોફી મળે. મૂળ વાત જે હતી તે શું હતું, છેલ્લા 15 વર્ષથી પશ્ચિમ બંગાળની ડેમોગ્રાફી આખી ચેન્જ થઈ જાય એ હદની ત્યાં એન્ટી ઇન્ડિયા એવી એક પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી ને હિન્દુ હોવું એ જાણે અપરાધ હોય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. પેલા ડાબેરીઓની સરકાર હતી, જ્યોતિ બસુએ 25-30 વર્ષ શાસન કર્યું, તો ત્યારે શું એ તો નાસ્તિકતાની ચરમસીમા હતી. એ આપણા હતા જ નહીં એમ કે તો ચાલે. એને દેશ હારે કઈ લેવા દેવા નથી. શ્રમિક સંગઠન યુનિયન બાજી કરવી અને સશસ્ત્ર બળવા જેવી વાતો એમાં નિપજાવવી, આ એનો ધ્રુવ મંત્ર હતો. 30 વર્ષ સુધી એને એકાધિકાર ભોગવ્યો અને પછી એમાંથી મમતા બેનર્જીએ જયારે શાસનમાં ધુરા સંભાળી એને હરાવીને, ત્યારે બધાને પેલા એમ લાગ્યું કે કમસે કમ આ હિન્દુ તો દીકરી છે જ, મમતા બેનર્જી હિન્દુની દીકરી તો છે, એટલે વળી આપણામાં કઈક ભારતીય જેવું આવશે. કારણ કે પેલું જે સામ્યવાદી વાળું હતું, જ્યોતિ બસુ વાળું, એને ચીન ની હારે લેવા દેવા હતું, આપણી હારે નહીં. મમતા બેનર્જી આવી એટલે બેનર્જીને જયારે ઉદ્ભવ થયો તો પ્રજાએ એ જ અપેક્ષા રાખી હતી પશ્ચિમ બંગાળની કે કમસે કમ હિન્દુસ્તાનની વાતો કરશે અને હિન્દુવાદી બનશે વગેરે વગેરે. પણ મમતા બેનર્જી એ તો સવાઈ મુસલમાન નીકળ્યા. હિન્દુને બદલે ધારણા કરતા વિશેષ મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણ જે શબ્દ પેલા તો આપણે વર્જ્ય તો બોલાતો નહીં, ડિબેટમાં પણ આપણે સોચીને બોલીએ એવું બોલા, એને બદલે અત્યારે તમે મેઇન સ્ટ્રીમ ટીવીમાં જુઓ, બધા જ પ્રવક્તાઓ પણ આમ જ કે છે. અને ટીએમસી ના પ્રવક્તાને કીધું તો એનો અહીંયા આજ તક નામની ચેનલ ચાલુ છે, એમાં કે છે કે વધારે પડતું જે મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણની વાત એ તો ભાજપ ઉપર આક્ષેપ નાખે છે કે એણે અમારી ઉપર આવું લાદ્યું, પણ મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણની વાત આક્ષેપ ક્યારે લાગે? તમારી સામે કઈક ધુવાડો એમને ન નીકળે, કઈક હળકતું હોય તો નીકળે. બિલકુલ. એટલે સવાઈ મુસલમાન મેં એટલા માટે કીધું, નહીતર મુસલમાનો હોય કોઈ અપરાધ નથી, પણ જે કેટલાક કટ્ટરવાદી મુસ્લિમોની પરિસ્થિતિ હતી એને આ લોકોએ એન્કરેજ કરવાને પોતાને મતમાં પલટવા મમતા બેનર્જી એટલા વટલાણા પલટાણા નહીં, વટલાણા કે ત્રાહી મામ પોકારી ઉઠી જનતા. એટલે આ તમે જે કહો છો ઝારમુડી કે આ ને તેને અમિત શાહ ને ચાણક્ય બાણક્ય, ઠીક છે, બધું બરાબર છે, એમાં એનો હિસ્સો તો છે, પણ એક વખત જયારે જનતા કુછ તય કર લે પછી જગતમાં કોઈનું કાંઈ ચાલતું નથી. સદ્દામ હુસેન હોય થી માંડીને ગોપાલ ઇટાલિયા સુધીનું સમજી લ્યો, બધા જ આપણી સામે છે. એટલે
એટલે પશ્ચિમ બંગાળમાં જનતાએ જ નક્કી કર્યું કે મતદાન પહેલી વખત નિર્ભીક રીતે મતદાન કરવા નીકળી શક્યા લોકો. અને જે સૌથી મોટો અવરોધ હતો સર, તમે જે SIR નવી મતદાર સુધારણા યાદી, જેમાં 93 લાખ એવા બોગસ વોટદારો જે હતા મતદારો, એના નામ કપાણા, ત્યારે આ મેળ પડ્યું. એક તો એ 93 લાખ મતદારો કપાયા, અને જે હિન્દુ લોકો મત કરવા માટે તેને ડરતા હતા એ નિર્ભીક રીતે મતદાન કરવા આવ્યા. એટલે રેકોર્ડ બ્રેક 93% મતદાન થયું. અને તમે એને હું અત્યારે જેને કરીએ છીએ એ પ્રમાણે ત્યાં ભવ્ય વિજય થયો છે મેહુલભાઈ. અને એક લીટીમાં જો આનું મથાળું કહું તો હું અનેક ચેનલમાં બોલી ચૂક્યો છું, આપને કહું, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીત કરતા તે ભારતની જીત થઈ છે એમ કેવું વધુ ઉચિત વાત છે. જી જગદીશભાઈ, એના ઉપરથી બીજું એક સમીકરણ નીકળે છે કે અત્યારે જે વોટિંગ વખતે જે આરોપો થયા, જે વસ્તુ કહેવામાં આવી કે જે રીતે હિંસા થઈ વોટિંગ વખતે, 91-92% પહેલા ચરણમાં મતદાન થયું, ત્યારે જે અમિત શાહે કહ્યું હતું કે 4 વાગે દીદી ટાટા ગુડ બાય. કઈ રીતે મૂલવો છો? કારણ કે અમિત શાહ જ્યારે જ્યાં ગયા છે, ચૂંટણીના પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે, અને ત્યારે જે કહ્યું છે એ લગભગ અત્યારની સુધીની ચૂંટણીઓમાં સામે આવ્યું છે. પછી હરિયાણા હોય કે મહારાષ્ટ્ર હોય કે બિહાર હોય. અમિત શાહે 4 વાગે ની 4 મેએ એમ કીધેલું કે 4 મેએ સવારે બેલેટ પેપર 9 વાગે ખુલશે અને બપોરના 1 વાગ્યા સુધીમાં તો બધા રૂઝાન બહાર આવી જવાના, અને 1 વાગ્યા પછી બાય બાય ટાટા દીદીને કરી દેવામાં આવશે. બિલકુલ બિલકુલ. એ એટલા માટે મેહુલજી, કારણ કે સિનારીઓ જનતાની નાડ પારખવી અને એની માનસિકતાને ચકાસવી, એમાં અમિત શાહની હોય કે કોઈ પણ રાજકારણી હોય, રીઢા અથવા તો પરિપક્વ, બેમાંથી જે શબ્દ, એનામાં આ માહેરત હોય છે કે એને ખ્યાલ આવી જાય કે જનતાનો મૂળ શેમાં છે. જનતાનું જનસભાઓમાં ઉમટવું, સ્વયંભૂ હાથે બોલાવો તમે જુદી વાત છે, મેનેજ કરો ઈ, પણ એવી રીતે જનતાનું સ્વયંભૂ ઉમટી પડવું અને ટીએમસી ના વિરુદ્ધમાં જે વાતાવરણ છે એનું બહાર આવવું, ઈ એમ દર્શાવતું હતું કે 4 મે માત્ર હવે ઔપચારિકતા બાકી રહી. જેમ અમિત શાહે કીધું કે 4 મે ગુડ બાય ટાટા બાય બાય, એમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ પણ એમ કીધેલું કે હવે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના શપથ સમારોહમાં જ આવવાનો છું. બિલકુલ જગદીશભાઈ, આપણી સાથે દિલ્હીથી કે રામમોહન રાવ, રિટાયર્ડ IAS છે, જેમણે પ્રજા પોલ કર્યો હતો, અને જે અત્યારે રિઝલ્ટ આવે છે એ રિઝલ્ટમાં, પ્રજા પોલમાં એમણે જે एग्जिट पोल આપેલો હતો એ તદ્દન यथार्थ ठहरे છે. राव साहब, गुजरात वंदन में आपका स्वागत है. हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता, जो कि गुजरात के जाने माने पत्रकार है, वो जुड़े हुए थे. आपसे भी, आपका भी स्वागत है. अब हम बात कर रहे थे अब तक 1-2 सवाल में कि किस तरह से मोदी और शाह और इसके साथ साथ जो आवाम थी पश्चिम बंगाल की, वो अपने आप निजी रूप से वोटिंग करने बाहर निकली, बशर्त इतना भारी दोनों चरण में इतनी बड़ी वोटिंग हुई. क्या जनता ने मन बना लिया था? आपसे समझना चाहते हैं कि क्या जनता ने इस बार मन बना लिया था, या कोई एनडीए या मोदी शाह की कोई स्ट्रेटेजी थी? किस तरह से ये वोटिंग हुआ? जनता किस तरह से, क्या वाकई बंगाल में दीदी के शासन को चरम पर समझ रही थी कि इतनी भारी वोटिंग हुई, और वो भी बीजेपी के पक्ष में हुई? जी, मैं बोलूं? जी. बंगाल में है ना, पिछले 15 साल से वो दीदी जी सरकार है ना, उसमें पहले 5 साल 6 साल ठीक था. इसके बाद जनता परेशान हो गया. क्या हो गया? वहां गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई. लोगों को एक पर्टिकुलर पार्टी वालों ने परेशान करना शुरू किया. करप्शन बढ़ गया, सिक्योरिटी नहीं है, ये सब लोग उनका गुंडे है ना, लोगों को परेशान करना शुरू किया. और मैं ये समझता हूं कोई भी सरकार किसी भी स्टेट में पहले जनता को न्याय दिलाना चाहिए, न्याय. दूसरा, इसके बाद सिक्योरिटी होना चाहिए आदमी का, आदमी महसूस करना चाहिए मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं. तीसरा होना चाहिए डेवलपमेंट. ये तीनों वहां मिसिंग हो रहे पिछले 6 साल से.
कभी भी समाज है ना अपना अपना इंडिकेशंस देता रहता है, भैया हमारा समाज में ये समस्या आ रहा है, ये दिक्कत आ रहा है। पिछले बार बीजेपी का 2016 में 4 सीट था, 2021 में वो बढ़कर 77 हो गया और उनका प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत 10 से लेकर 38 हो गया। मतलब उसी समय समाज इंडिकेशन दे रहे, ममता बनर्जी का सरकार, टीएमसी सरकार सही नहीं चल रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन उस समय उनके पास, समाज के पास इतना ताकत और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उस समय टीएमसी को हरा के और बीजेपी को ले आए। उनको और 5 साल लगा, क्योंकि उनका गुंडे इतना, आप भी देख रहे हो, इतना सेंट्रल फोर्स लगाने के बावजूद भी इतना वायलेंस कर रहा है। अभी रीपोलिंग को रीपोलिंग करना पड़ रहा है लोग इतना, और वहां कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। और क्या हो रहा है, यंग जनरेशन ना अभी यूट्यूब में हर आदमी देखते, हर स्टेट में देख रहे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप सबसे सस्ता लेबर वहां मिलेंगे। मान लीजिए आप कोई होटल में काम कर रहे हैं, कोई दूसरा जगह काम कर रहा है, 6-8 हजार से लेके 11,000, और किसी को सबसे ज्यादा पैसे मिल गए ना 18,000 20,000 में, बहुत बड़ी सैलरी। लोगों में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखेंगे ना, बहुत गरीबी है। इन सबको क्या किया, दबा के रखा। ये लोग ऊपर ना आए, उनको क्वेश्चन ना करे, और उनको वो जो पुराना लेफ्ट फ्रंट सीपीआई सीपीएम का जो पॉलिसीज है, तरीका है, वो सब इस्तेमाल करता रहा और जनता में आक्रोश बढ़ता रहा। देन इसके बाद वह क्या हुआ, मुझे लग रहा है बहुत सारा वोटिंग सिस्टम में बहुत सारा वोट ऐसा बना हुआ है, वो बहुत फर्जी है। और पब्लिक ये भी शिकायत करना शुरू किया। कुछ दिन लगेगा तो हम लोगों को कुछ कुछ जिलों में बहुत परेशानी होंगी। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है दूसरा जगह से आए हुए, उन लोगों से भी ज्यादा परेशान है। और कुछ ऐसा 3-4 जिलों में हिंदूस बहुत परेशान है। वो सब इकट्ठा हो गया और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ये सब चीज को पहले सबसे क्या किया, वो लोग जितना भी बोगस वोट हो उसको खत्म करें, और जो आदमी सही है, जेन्युइन है, उन्हीं को वोट डालने दिया जाए। उसमें हो सकता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन हुआ, इसके बाद कुछ ना कुछ है। देन लोग सेफ्टी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। इतना सेंट्रल फोर्सेस लगाया है ना वहां, वो नहीं रहता, बहुत परेशानी होता, इलेक्शन नहीं हो पाते इतना। राव साहब, आपने जब एम्प्लॉयमेंट की बात की, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी मित्र जो हैं जगदीश मेहता, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हिंदी में बताएं ताकि आप भी समझे। जगदीश भाई, क्या वो मौका था जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने सिंगूर से पूरे टाटा नैनो के प्रोजेक्ट को केवल 1 रुपये के मैसेज से पूरा प्रोजेक्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया? वो बंगाल के लिए कुठाराघात था क्या, एक सीने पर बड़ा भार था कि आपको एम्प्लॉयमेंट, आपका पूरा प्रोजेक्ट सिंगूर से उठाकर गुजरात में डाल रहे हैं, यहाँ कितनी संभावना है रोजगार की है, डेवलपमेंट की है, क्या यही वजह होगी? आप बताएं, उसके बाद राव साहब आप भी इस पर रिएक्ट करिएगा। जाला सर, वो जो राव साहब कह रहे हैं वो बहुत सही बात है। वहां पे गुंडागर्दी और पैरेलल गवर्नमेंट जैसा है। गुंडागर्दी अगर होना वो अलग बात है, और सरकार का उसका संरक्षण होना वो दूसरी बात है। ये सरकार द्वारा संरक्षित गुंडागर्दी थी। ये प्रोटेक्शन मनी जिसको कहते हैं, छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर के जहां कहीं भी उनको लगे वहां उनके प्रोटेक्शन मनी उनके पास से वसूलाया करता था। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट में वही प्रॉब्लम था। पूरा का पूरा प्लांट अगर वहां शुरू होने जा रहा था, तब ये प्रोटेक्शन मनी वाला है गुंडा, जिसको राव साहब कह रहे हैं, ठीक बात है, वो प्रॉब्लम था। और टाटा का तो आप हम लोग जानते हैं, वो अदानी अंबानी जैसी बात नहीं है। टाटा गर्भ श्रीमंत है, और इसको सही अर्थ में जिसको उद्योगपति बोलते हैं, उनको ये झंझट नहीं चाहिए था। इसका पता अगर नरेंद्र मोदी को चला, उन्होंने खाली एक फोन किया, 1 रुपये का कॉल किया, और वहां से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ आ गया। तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा उद्योग वहां नहीं लगता है। उसका मेन कारण, रीजन जो है, वो ये गवर्नमेंट द्वारा, यानी वो संरक्षित वो गुंडागर्दी, वो उनसे पूरी जनता त्रस्त थी। और मैं आपको बता दूं, कहीं कितने ऐसे, जैसे कि मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर 24 परगना है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके। वहां तो गुजराती, या सॉरी, हिंदी भाषी हो, गुजराती हो, या तो कम से कम हिंदू हो,
उनको मत देने के लिए निकलना वो भी एक अपराध जैसी बातें थी। उनके ऊपर हल्ला हुल्ला होता था, कितने मर्डर भी तो हो गए हैं, हम लोग जानते हैं। इस बार उसकी पूरी सुरक्षा की गई केंद्र सरकार द्वारा। केंद्रित वो अर्ध लश्करी दल जिसको कहते हैं, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पे लगाए गए, जैसे कि हम लोग कश्मीर में देखते हैं जहाँ लोगों हमें कम दिखते हैं लोग और हमें सैनिक ज्यादा दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार का यह चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारी मात्रा में अपना सैन्य बल वहां पे लगाया और निर्भीक रूप से सभी को वोटिंग करने के लिए आह्वान किया गया और कहा गया अमित शाह द्वारा भी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही तो था, जो रोहिंग्या हो या घुसनखोर और कोई हो, नक्सलवादी हो और ये गुंडागर्दी वाले हो, ये सभी लोगों ने मिलकर पूरे पश्चिम बंगाल में जीना हराम कर दिया था कॉमन लोगों का। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा बना जिसको वो सुरक्षा का मुद्दा कहते हैं, और उसके जो फल है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पाया है। जी जगदीश भाई, अनएम्प्लॉयमेंट ये वाली बात जो राव साहब बता रहे हैं, दूसरा आरजीकर मेडिकल की पीड़िता की माता को टिकट देकर क्या भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी से सारी सिंपैथी हाईजैक कर ली? इसको इस तरह से समझते हैं? आप बताइए, उसके बाद राव साहब आप इस मुद्दे पर विस्तार से बताइएगा। जाला साहब वैसा ही है। जी ममता बनर्जी ने एक भरी सभा में ऐसी बात कही थी कि अगर अगर अनिवार्यता ना हो तो कोई भी महिला घर से बाहर ना निकले, ऐसी मेरी हिदायत है। बोलिए, जब एक राज्य का सूबा या तो चीफ मिनिस्टर, वो भी महिला होते हुए भी, अगर वो इतनी ऐसी बातें करती हैं, इसका मतलब यह है कि वहां कानून और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी मुद्दे को आप ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात तो छोड़िए, क्योंकि वहां अनएम्प्लॉयड नहीं, वहां बहुत बड़े कोई उद्योगपति है भी नहीं इतने बड़े, लेकिन जो छोटे बड़े कारोबारियों हैं उनके पास ये गुंडागर्दी से पैसे वसूलते थे। और सुरक्षा का मुद्दा इसीलिए ही तो है, बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए अपना माइंड जो फ्री है। अपने गुजराती के सबसे मशहूर लेखक गुणवंत भाई शाह, उनका एक विधान है कि जिसके जिसके दिमाग के पास कुछ काम नहीं है तो वो अणुबम जैसा होता है, यानी निष्क्रिय दिमाग वो अणुबम जितना जितना घातक होता है। ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी हुआ और नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा को उठा लिया और बोला कि जैसे सुभाष बाबू कहते थे कि आप मुझे वोट दो मैं आपको आजादी दूंगा, ठीक उसी प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। किससे? असलामती से, ये गुंडागर्दी से, ये नक्सलवादी से, ये घुसनखोरों से, इन सभी लोगों से हम आपको आजादी दिलाएंगे। तो ये दोनों मुद्दा है वो ज्यादा कारगर हुए और भारतीय जनता पार्टी की फतेह हुई। जी जगदीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और भी कहीं जुड़ना है, आपको और भी काम है, गुजरात वंदन की ओर से आपका धन्यवाद। तो राव साहब, आप बताइए कि किस तरह से ये आरजीकर की पीड़िता जो थी, उनकी महिला को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या पूरी संवेदनाएं टीएमसी की ओर से हाईजैक कर ली क्या, खास करके महिला वोटर्स की? बिल्कुल। जहां भी मैं भी सुना था ना, अभी जो पत्रकार महोदय अभी बोल रहे थे, आप महिलाओं को ऐसे कहा गया है, आपको बहुत जरूरी काम ना हो 8 बजे के बाद बाहर, रात में 8 बजे के बाद बाहर ना निकले, ऐसा बताया गया। ये सही है। लोगों को ऐसा कोई सरकार का मुखिया ऐसा बोलेंगे, मतलब आप 8 बजे आप जनता को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा देंगे या बोलेंगे आप 8 बजे तक घर मत निकलो? तो आजकल सब इक्वल है, महिला हो पुरुष हो, रात में निकलते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे काम करते वापस आते। ये भी महिलाओं में हम लोग जब सर्वे में कर रहे थे, पूछा था क्या महिला, हम लोग तो सुरक्षा, हमको क्या, आपने महिलाओं से पूछा आपको क्या चाहिए? आपको पैसा मिल रहा है, 1500 का लक्ष्मी भंडार मिल रहा है और दूसरा चीज भी मिल रहा है, बट लेकिन हम तो सुरक्षित चाहिए ना हमको। ये भी इन महिलाओं ने बोला। इसके अलावा हर गांव में उनका गुंडे हैं, हर गांव में। आप मान लीजिए हम लोग भी गए थे सर्वे करने, वो हम लोग आराम से हम कर रहे थे, लोग में कुछ 3-4 लोग आ गए था, तुम लोग बीजेपी का एजेंट हो, बीजेपी हमारे पीछे पड़ गया और हमारे लड़कों को धक्का दे के नीचे गिरा दिया। ऐसा 2 जगहों में हुआ। ये क्या है ना, इनका गुंडे हर गांव में पाल के रखा है। ये लोग ना देखते हैं, कोई भी आदमी बाहर आदमी आए ना, उनको तुरंत पूछते हैं कौन है, क्या हो, कहां से आया। इसको पूरा स्टेट को ना 15 साल से एक एक आयरन कर्टेन,
एक आयरन कर्टेन जैसा बना दिया, उसमें बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगा, अंदर का बाहर मतलब जो नहीं जाता, इसलिए वो आयरन कर्टेन या जो भी आयरन डोम के अंदर सब चीज चल रहा था। तो ये चीज को मालूम पड़ा, एक तो इतना फर्जी वोट है और जनता का सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और न्याय नहीं मिल रहा है जनता को। जनता ने ये महसूस किया है, एक हमको दूसरा सरकार आ जाए, हमको लाभ मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, बाद में डेवलपमेंट ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, नहीं तो परसों होगा। जब आप सुरक्षित नहीं हो, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपको बड़ा-बड़ा बिल्डिंग हो, वहाँ बड़ा ब्रिज है, वहाँ बड़ा रख के फायदा क्या हुआ? सो पहले बिल्कुल। न्याय और सुरक्षा चाहिए। ये सब मुद्दा है। जी, बोलिए। राव साहब, सरकार बनेगी, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? हम यहाँ गुजरात बैठ के मानते हैं कि ममता बीजेपी की सरकार को इतनी आसानी से रूल नहीं करने देगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान अलग-अलग जगहों पर भिड़ंत हुई, विस्फोटक मिले या कहीं गोलाबारी हुई, किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में शस्त्र आते कहाँ से ये पता नहीं है, पर जिस तरह से ममता ने अभी तक शासन किया है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या उनके मुख्यमंत्री को ये आसानी से सरकार चलाने देगी, इनकी राह में रोड़े नहीं होंगे? और क्या सरकार अपनी ओर से जो वहां के माफियाज हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, इसमें ईडी, आईडी, बाकी की जो उनकी एजेंसियां हैं, उसको पीछे लगा के वहां से सफाया शुरू करेगी, या फिर ममता इनको चैन से शासन नहीं करने देगी? क्या-क्या संभावनाएं बनती है आगे? क्यों करने नहीं देंगे? क्यों करने नहीं देंगे? पहले मुद्दा होना चाहिए साहब, गुंडे बदमाशों को साफ कर देना चाहिए। वह जितना भी है गुंडे बदमाश सबको साफ कर देना चाहिए। और जो भी इनका हिस्ट्री है, जितना गुंडा बदमाशों का, पहले सबको सब फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। दूसरा टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान देते रहें और इसके अलावा जहां-जहां पुराना इंडस्ट्री बंद पड़ा हो, मान लीजिए हम लोग घूमते रहा, वो कौन सा जगह है, नंदीग्राम और दूसरा एक दो जगह है, वो कलकत्ता को करीब 30-40 किलोमीटर, 15-20 साल से इंडस्ट्री सब लगा पड़ा हुआ है, उन सबको रिवाइव करिए। रिवाइव करके उन सब में मतलब रोजगार मिल जाएगा लोगों को। देन महिला सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन हो जाए, महिलाओं को कभी भी कोई चीज हो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कितना बड़े आदमी हो, इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, कोई राजनीति, कोई ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन कुछ नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा और जितना जितना हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कर सकते हैं, लोगों को मान लीजिए कुछ 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 पढ़ा लिखा लोग है, कुछ अपना हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, सरकार का अलग अलग योजना होते हैं, पहले सबको हम कितना लोगों को सरकारी नौकरी मिल नहीं जा पाएगा। सो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को पैसा दीजिए, अपना बैंक से लोन दिलवा दीजिए, लोग अपना अपना कुछ करते रहेंगे। और वहाँ टूरिज्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है, आपका सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग है, इनको एक ऐसा डेस्टिनेशन जैसा बना दे, वहां भी बहुत सारा रोजगार मिलता रहेगा। ये चीज को पहले, यही मैं बता रहा हूँ, जनता को महसूस होने पहले 2 महीने में हम सुरक्षित हैं, हमको न्याय मिलेगा। देन इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करिए। देन जो भी इंडस्ट्रीज पुराना बंद पड़ा हुआ है या जो भी आना चाहेंगे, जो भी सरकारी जमीन है, उनको लोगों को लीज पे दे लीजिए 99 सालों का। पूरा क्यों बदलेगा नहीं? बदल जाएगा पूरा वेस्ट बंगाल। बिल्कुल राव साहब, आज शाम मोदी जी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, उसके बाद जालमुरी खाने के लिए और जो वादा करके निकले थे पश्चिम बंगाल को कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में वापस लौटूंगा, तभी आऊंगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वहां भी जालमुरी खूब बटेगी। अब तो गुजराती व्यापारी जो है वो जालमुरी का प्लांट भी वहां लगाने वाले हैं। उन्होंने गुजरात में घोषणा भी कर दी है, केवल 5 रुपये में जालपुरी, पैक्ड जालपुरी आपको 5 रुपये में वहां मिलेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री है वो फाफड़ा, गाठिया और जलेबी के काफी शौकीन है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात से भी कोई व्यापारी इसकी हामी भरेगा, हिम्मत दिखाएगा और कोलकाता जो है वो जालमुरी का स्वाद गुजरात टेस्ट करेगा और पश्चिम बंगाल जो है रसगुल्ला के साथ साथ
फाफड़ा जलेबी और उनका भी लुत्फ उठाएगा। राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम समय पे बात करते रहेंगे, आपको ठीक है। न्योता देंगे। तब तक के लिए हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार। आपका शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। નમસ્કાર। તો પશ્ચિમ બંગાળમાં જે રીતે આખી ઘટનાક્રમ થયો અને 4 મે જ્યારે વોટિંગ થશે ત્યારે શું થશે એ અમિત શાહે પહેલા જ પ્રિડિક્ટ કરી દીધું હતું. ગઈકાલે એટલે કે રવિવારે જ્યારથી એક્ઝિટ પોલ શરૂ થયા, એક્ઝિટ પોલમાં સૌથી મોટી વાત એ સામે આવતી હતી કે પશ્ચિમ બંગાળ એ મમતાના હાથમાંથી સરી જાય છે. અને જે રીતે અમિત શાહે કહ્યું હતું, પ્રિડિક્ટ કર્યું હતું, એમ 4 વાગે ટાટા ગુડ બાય મમતાનું પશ્ચિમ બંગાળમાંથી થઈ ગયું છે. હવે રાવ સાહેબ અને જગદીશ મહેતાએ જે રીતે ગુજરાત વંદનના દર્શકો સાથે વાત કરી, એમાં એ જે ચેલેન્જીસ છે એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કેટલી વહેલી ખરી ઉતરે છે અને જે સ્થાનિક જનતા છે પશ્ચિમ બંગાળની એને જનવિશ્વાસ આપવો પડશે કે સુરક્ષા અને શાંતિ અને સલામતી એ અમારી જવાબદારી છે. બાકી ઉદ્યોગો જે રીતે ગુજરાતમાં આવ્યા, જે રીતે અન્ય રાજ્યોમાં આવ્યા છે, જે રીતે ઉત્તર પ્રદેશનો વિકાસ થયો છે, જે રીતે બિહારનો વિકાસ થવાનો છે, એ જોતા પશ્ચિમ બંગાળ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર વિશે લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. પરંતુ સમય લાગી શકે છે, પરંતુ 5 વર્ષ પછી સત્તા પણ બરકરાર ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે રહી શકે છે. નમસ્કાર.